Hi guys, my name is Shubham Singhal and I am a chartered accountant. I have cleared my CA final in November 2018 attempt and I had secured an All India rank 4 in the CA final attempt. And this video is a quick video wherein I will just introduce myself and take you through my journey of becoming a chartered accountant, which I find is pretty इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा 11th और 12th में मैंने इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लिया और कोई सब्जेक्ट्स थे नहीं, शायद वो कॉमर्स भी ले ही लेता, इतना पढ़ना था. तो आफ्टर 11th and 12th I realized that I will not be able to do biology, I will not be able to do physics chemistry. I may be able to do but I don't want to, I am not interested in doing it. So I somehow convinced my parents to let me do CA because they wanted me to become a doctor. So I somehow convinced them to become a CA, and they were pretty scared of not allowing the kids to do what they want because they were seeing unexpected consequences. So they are like, चल ठीक है कर ले, अब क्या बोले. तो so that was the first step that I took towards CA because I was from a science background. So I took a 6 months gap before appearing for my CPT. So I appeared my CPT with a preparation of 6 months जिसमें मैंने पूरे अपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पूरे स्ट्रॉन्ग किए ना. मैं चाहता तो शायद मे अटेम्प्ट में दे भी सकता था और शायद क्लियर भी हो जाता, बट देन till the end of the CA course I appreciated the decision to not do it in a rush and do it properly, and then I ended up taking a 6 months class for CPT और मैंने 6 महीने CPT की तैयारी करके दे दी. CPT क्लियर हो गया. I secured pretty decent marks. I secured 170 out of 200 in the CPT exam, and then we come to a stage wherein we have to decide IPCC देना है तो एक ग्रुप दें, दो ग्रुप दें, या दोनों दोनों एक साथ दे दें. इट इज़ अ मेजर डिसीजन अगेन. तो जैसे मैंने डिसाइड किया था सीए करना है, तो यहाँ पे भी एक मेजर डिसीजन था जिसमें पहले मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं एक ग्रुप देने की कोशिश कर रहा था. लेकिन आई हैड गुड सीनियर्स, आई हैड गुड पीपल अराउंड मी. So one of my elder cousin suggested that I give both the attempts together. दोनों ग्रुप की तैयारी शुरू करो. एग्जाम के 2 महीने पहले अपना असेस कर लेना कि कितनी पढ़ाई होगी है और उस बेसिस पे डिसाइड कर लेना कि दोनों में से कौन सा ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देना है. तो pretty decent advice. I started with my preparation of IPCC. 2 महीने पहले तक 80-85% कोर्स दोनों सब ग्रुप का हो ही जाता है और इतनी ज़्यादा मेहनत लग जाती है तुम्हारी ऑलरेडी कि तुमको लगता है यार अब तो दे ही देते हैं, ख़त्म करते हैं, क्यों अगला मेहनत डालना. तो somehow I struggled with the IPCC and I managed to clear both the attempts, both the groups in a single attempt. So that was a major decision for me. I'll tell you how. That small decision of attempting both group impacted me throughout the end of my course. That I'll tell you how. उसके बाद डिसीजन आया कि आर्टिकलशिप करनी है, तो आर्टिकलशिप कहाँ से करना है वो बहुत मेजर डिसीजन होता है. तो again I had a different cousin doing CA. Being a Marwadi, you have a lot of cousins doing CA. So I had a cousin who was doing CA, so he suggested that you should try for a Big Four, do it for a year. If you don't find it suitable, you shift, you go to any other department or firm of your choice. So that is how it started. But I went into Deloitte. Deloitte में मैंने statutory audit department join किया. So I found it pretty decent. So I didn't think about switching because I wanted to continue there. तो 2 3 साल डेलोइट में आर्टिकलशिप की और उसके बाद फाइनल की प्रिपरेशन पे आ गए. तो फाइनल वॉज अ मेजर चैलेंज. सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने आर्टिकलशिप में ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा होता है, क्लासेस अटेंड करने मिलते नहीं है, तो तुम्हारे बहुत सारे पेंडिंग टॉपिक्स होते हैं. तो पेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जो तुमको एग्जाम के लिए जो 4 महीने 5 महीने की प्रिपरेशन लीव मिलती है उसमें तुमको पूरा पढ़ना होता है. तो बेस्ट पार्ट ये था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हुई नहीं थी तो इसलिए तुम डर गए थे, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया 5 महीने पहले. And probably the fear was the reason why I could crack my CA final with a rank. Now the importance of that decision of doing both group of IPCC was कि अगर मैं उस समय एक एक ग्रुप करके निकालता तो मेरे को फाइनल में कभी दोनों ग्रुप एक साथ देने की हिम्मत नहीं आती, और अगर दे भी देता तो शायद रैंक का कभी नहीं सोचता. वो तो मैंने फाइनल इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप एक साथ निकाला एंड आई हैड मिस्ड माई इंटर rank in the inter level with 8 marks and rank at CPT level also with 8 marks. So that is why I thought let's target for a rank this time. Although it was not a really a target, but then yes, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार रैंक आ जाएगा तो क्या होगा, वाई शुड यू नॉट ट्राई. ये अलग बात है, पढ़ाई में वो नहीं दिखता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा जब भी तुम अपना तुम्हारा प्रेपरेशन लीव चल रहा होता है तो तुमको हमेशा यही लगता है कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट अप टू द मार्क.
या फिर मेरे को चीज़ें याद नहीं रह रही है, या फिर मैं सही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें बाद में पता चलती है जब रिजल्ट आता है, या फिर जब तुम एग्ज़ाम लिख के आते हो, तो जब तुम बाहर आते हो तो तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन होता है कि यार जितनी चीज़ें पढ़ी थी सब याद है, और जितनी चीज़ें एग्ज़ाम में आई वो सब आता था। बिकॉज एक बात समझो, हर एक सब्जेक्ट जो है वो 1000 1500 पेजेस का होता है, उसमें से एग्जामिनर को सिर्फ 100 मार्क के 120 मार्क के क्वेश्चंस बनाने हैं। मतलब वो, मान लो अगर उस 1000 पन्ने में 2000 क्वेश्चंस हैं, तो वो 2000 में से सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन उसको उठाने हैं। तो शायद जो चीज़ें तुमको टफ लग रही है, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट तुमको पूरा टफ लग रहा है, वो शायद एग्जाम में आए ही ना। करेक्ट, क्योंकि शायद जो तुमको टफ लग रहा है वो एग्जामिनर के हिसाब से ईजी हो, तो ही इज नॉट आस्किंग दैट इन द एग्जाम। सो ऐसा होता है कि तुम्हारा एग्जाम अनएक्सपेक्टेडली अच्छा चला जाता है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। एफआर से लेकर के सारे एग्जाम्स धीरे धीरे अच्छे जाते गए। पहले एफआर का एग्जाम था, तो एफआर का एग्जाम में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल से उठा करके डाल दी थी, तो ऐसा लगा यार बहुत अच्छा गया। फिर उन्होंने एसएफएम में भी वो किया कि जितने एसएफएम में स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस एज इट इज उठा करके डाल दिए। तो लिटरली मैं एसएफएम के एग्जाम के बाहर आके बोला यार ये इंस्टीट्यूट मजाक कर रही है क्या। आई थिंक इंस्टीट्यूट ने सुन लिया। फिर ऑडिट का पेपर शुरू हुआ। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने जो मजाक किया हमारे साथ, ऑडिट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ, लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा टफ, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स was that the paper was tough for everyone across the nation. You have to perform better than others. So the moment I got my ITT paper, the last paper, ITT पेपर भी बहुत ज़्यादा इजी आया था, मतलब बहुत ज़्यादा इजी आया था। तो मेरे को लगा यार एक बात समझ, जब पेपर मेरे हाथ में था मैंने सोचा यार पेपर इतना इजी है और ये लोग बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट so the ideally your focus should be on performing and writing your answers better than other people. क्योंकि अगर वो एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो सारे पढ़ के आते हैं, तो उस क्वेश्चन पे हाउ विल यू प्रेजेंट योरसेल्फ बेटर देन अदर्स। तो आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन दी फॉर्मेट्स, मोर ऑन दी कंटेंट, एंड आई ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज। मतलब जितने मेरे को लीगल वर्ड्स जितने मेरे को याद आ रहे थे सब मैंने लिख दिए, ना कि कीपिंग इट वेरी कैजुअल। So that is how you have to make some or the other strategy, and you have to make thousands of decision at every point of your life, so that it shows the results towards the end. I have seen lot of people being bothered about November 20 का एग्जाम होगा कि नहीं, अगर होगा तो कैसे होगा, पेपर बहुत टफ आएगा क्या। My only question is why are you worried about it? It is something which you cannot control. कल को एग्जाम होगा कि नहीं ये तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है कि एग्जाम के 10 दिन पहले ही पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम 10 दिन पहले कैंसिल हो गया, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिसीजन ही नहीं आया, एग्जाम कंटिन्यू हुआ। सो रादर देन वेस्टिंग योर एनर्जी इन दोज टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस, वी शुड channelize our energy into preparing better than others. While other people are tensed about exam hoga ki nahi, we should be more tensed about what more material can I do. If you were earlier targeting for a passing marks, now you should have targeted for a rank. If you think everyone is targeting for a rank, it is not true. Rarely do anyone target for a rank. We always think कि भाई बस 400 आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और इनफैक्ट मेरा भी, that I'll tell you the day when the result came out, I was actually sitting at Siddhivinayak Mandir, and see this thing you cannot lie to anyone, but I know myself, I was actually praying to God कि भगवान 400 मार्क दिला दे, ऑडिट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं फिर से, और कुछ सब पढ़ लूंगा अगर फेल कर भी दोगे तो, लेकिन ऑडिट नहीं पढ़ पाऊंगा, तो ऑडिट में एग्जामिशन तो दिला ही देना। सो फॉर अ पर्सन हु वाज एक्चुअली प्रेइंग दिस got a rank, so that happens only because you have given your 100%. so हमारे अटेम्प्ट में भी बहुत सारे अनसर्टेनिटीज चल रहे थे कि यार एग्जाम करेक्शन ढंग से नहीं हो रहा है, क्या पता अगर एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिया, एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं रहा, स्ट्राइक चल रहे थे, फिर भी यू, although your attention used to get diverted, but then you have to be matured enough to bring back your attention into studying, right? That these things should not impact your dedication level. So that was pretty my journey. Becoming a CA is it is very respectable. People actually appreciate the degree, and if you have a dream to become a CA, you have to work hard for it, because it is not a very easy thing to achieve, and you have to be outstanding in performing better than other children to come in those top 2-3% whatever the clearing percentage is. ठीक है, and with that I wish you all the best for all your exams, upcoming exams.